اچرا پولیس پتنگ فروش مافیا کے خلاف ان ایکشن۔ اچرا پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 3 پتنگ فروش گرفتار کر لیے۔ ملزمان کو اچرا بازار پاکستانی چوک سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضے سے 200 سے زائد پتنگیں اور 3 ڈور کی چرخیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ملزم نے پتنگیں تیار کر کے لاہور کے مختلف علاقوں میں فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزمان میں حمزہ، شہزاد اور عمر شامل ہیں۔ مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن خلاق اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی کی آڑ میں انسانی زندگی سے کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ چیف ایگزیکٹو فلیسکو کی ہدایت پر نادہندگان کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی۔ گزشتہ ماہ ستمبر میں 7,899 نادہندگان سے 267.82 ملین کی وصولی کی گئی۔ قصور سرکل نے 4,091 نادہندگان سے 113.99 ملین روپے کی ریکوری کی۔ سینٹرل سرکل نے 1,565 نادہندگان سے 72.44 ملین روپے وصول کیے گئے۔ اسی طرح ایسٹرن سرکل نے 421 نادہندگان سے 35.68 ملین کی ریکوری یقینی بنائی گئی۔ اوگاڑہ سرکل سے 9.86 ملین، ننکانہ سرکل سے 7.83 ملین، شیخوپورہ سرکل سے 17.87 ملین، نادرن سرکل 5.18 ملین اور ساؤتھ سرکل سے 5.05 ملین روپے ریکور کیے۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو فلیسکو رمضان بٹ کا کہنا تھا کہ بقایا جات کی وصولی کے لیے بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی۔ صارفین بجلی کے بلز بر وقت ادا کریں تاکہ سہولیات بہتر بنائی جا سکے۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف امجد ہاشمی۔ لیسکو میں بڑے پیمانے پر افسران کے تقرر تبادلے۔ قمر زمان کو ڈپٹی مینیجر PNP-TNG سے ڈپٹی مینیجر ریجنل اسٹور شالامار تعینات کیا گیا۔ عابد ہمایوں خٹک کو ڈپٹی مینیجر PNP ڈسٹرکشن سے ڈپٹی مینیجر مٹیریل عابد ہمایوں خٹک کو ڈپٹی مینیجر PNP ڈسٹرکشن سے ڈپٹی مینیجر مٹیریل PNP-TNG تعینات کیا گیا۔ سبحان صدیق کو ڈپٹی مینیجر راوی روڈ سے ڈپٹی مینیجر PNP ڈسٹرکشن مقرر کیا گیا۔ معراج خالد کو ڈپٹی مینیجر قصور سٹی سے ڈپٹی مینیجر راوی روڈ تعینات کیا گیا۔ عامر اکرم کو ڈپٹی مینیجر MNT سینٹرل سے ڈپٹی مینیجر MNT نارتھ سرکل مقرر کیا گیا۔ محمد اجمل شاہد کو ڈپٹی مینیجر MNT نارتھ سرکل سے ڈپٹی مینیجر MNT سینٹرل تعینات کیا گیا۔ نئی محسن کو ڈپٹی مینیجر ماناوالا سے ڈپٹی مینیجر TLCGSC مقرر کیا گیا۔ اسی طرح سعادت صدیق کو DDT ایسٹ سے DDT نارتھ تعینات کیا گیا۔ محمد نعیم کو DDT سینٹرل سے DDT ایسٹ سرکل منتقل کیا گیا۔ فیض احمد کو ڈپٹی مینیجر چونیا سے ڈپٹی مینیجر DDT سینٹرل مقرر کیا گیا۔ طارق بشیر کو ڈپٹی مینیجر اوکاڑہ سے ڈپٹی مینیجر چونیا تعینات کیا گیا۔ نعمان احمد بھٹی کو ڈپٹی مینیجر گلشن راوی سے ڈپٹی مینیجر قصور سٹی مقرر کیا گیا۔ اسی طرح محمد کاشف شیخ کو ڈپٹی مینیجر MNT اوکاڑہ سے ڈپٹی مینیجر MNT پھول نگر تعینات کیا گیا۔ سمیع نوید کو ڈپٹی مینیجر MNT پھول نگر سے ڈپٹی مینیجر MNT اوکاڑہ تعینات کیا گیا۔ اشفاق احمد کو ڈپٹی مینیجر ڈیفنس ایسٹ سے ڈپٹی مینیجر عزیز بھٹی مقرر کیا گیا۔ محمد زبیر سرور کو ڈپٹی مینیجر سمن آباد سے ڈپٹی مینیجر کنسٹرکشن ساؤتھ تعینات کیا گیا۔ خرم عطا کو DDT GSO سے ڈپٹی مینیجر SNI مقرر کیا گیا۔ ظفر اللہ سانگی کو DDT قصور سے DDT GSO تعینات کیا گیا۔ حماد اللہ ارشاد کو ڈپٹی مینیجر دیپالپور سے DDT قصور مقرر کیا گیا۔ فیصل افریدی کو DDT شیخوپورہ سے ڈپٹی مینیجر SNI تعینات کیا گیا۔ محمد شاہد کو ڈپٹی مینیجر TNG ڈپازٹ ورک سے ڈپٹی مینیجر TNI سیکشن مقرر کیا گیا۔ تفضیلہ منظور کو ڈپٹی مینیجر ڈیولپمنٹ سے ڈپٹی مینیجر پروکیورمنٹ 2 تعینات کیا گیا۔ محمد منصور کو ڈپٹی مینیجر MI ڈسٹرکشن CETS ڈیزائن سے ڈپٹی مینیجر ڈیزائن ڈسٹرکشن مقرر کیا گیا۔ عامر فضل کو ڈپٹی مینیجر ڈیزائن ڈسٹرکشن CETS ڈیزائن سے ڈپٹی مینیجر
MI डिस्ट्रक्शन मुकर्रर किया गया। शाहिद नवीद चुट्टा को डिप्टी मैनेजर फारूकाबाद से डिप्टी मैनेजर S&I मुकर्रर किया गया। मोहम्मद आसिफ खान को डिप्टी मैनेजर S&I से डिप्टी मैनेजर फारूकाबाद मुकर्रर किया गया। शिराज अहमद को DCM सेंट्रल से DCM ईस्ट तैनात किया गया। कामरान मसर को DCM ईस्ट से DCM सेंट्रल मुकर्रर किया गया। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को रमजान भट्ट का कहना था कि मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर अफसरान की तैनातियां सार्फिन को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना है। सियालकोट के थाना कोटली सैयद अमीर के नवाही गांव जहूरा में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। मामूली तलख कलामी पर नौजवान वकास को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट के थाना कोटली सैयद अमीर के इलाका जहूरा में मामूली तलख कलामी पर नौजवान वकास अहमद को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया गया, जिसे फौरी तौर पर अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां पर वह जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर के नवाही गांव जहूरा में नौजवान वकास अहमद वल्द मोहम्मद मुनीर खोकर की मुल्जिम मजहर अलमरूफ मज्जू से मामूली तलख कलामी हो गई। मुल्जिम मजहर ने छुरियों को वार करके वकास अहमद को जख्मी कर दिया, जिसे फौरी तौर पर अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग अस्पताल सियालकोट में मुंतकिल किया गया, जहां पर वो जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर अपनी इब्तदाई तफ्तीश शुरू कर दी है। थाना कोटली सैयद अमीर के SHO काशिफ भट्ट का कहना था कि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस टीम मुल्जिम को ट्रेस करने के लिए भरपूर कोशिश है। बहुत जल्द मुल्जिम पुलिस के शिकंजे में होगा। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज सियालकोट। सियालकोट के थाना फलोरा के गांव डुगरी हरिया में नाबालिग बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती और वीडियो बनाने के वाक़े पर DPO सियालकोट के नोटिस पर पुलिस की फौरी कार्रवाई। मरकजी मुल्जिम समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट के थाना फलोरा की हदूद डुगरी हरिया के रहायशी गुलाम सरवर में हाल ही में पुलिस को इत्तला दी के 5 साल कबल इनकी 16 साल नाबालग पोती मीम को 5 मुल्जमान ने ज्यादती का निशाना बनाया और इसकी वीडियो भी बना ली थी। खौफजदा होकर बच्ची ने इज्जत के मारे ये बात किसी को नहीं बताई थी। हाल ही में इस वीडियो का इल्म हुआ है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने फौरी तौर पर इस संगीन वाक़े का नोटिस लिया और SDPO पसरूर की जेर निगरानी एक टीम तश्कील देकर मुल्जमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का हुक्म दिया। थाना फलोरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है और इस वीडियो में नजर आने वाले ज्यादती के मुल्जिम हुसैन उर्फ जश्न समेत 3 मुल्जमान को मुख्तलिफ मकामात से ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DPO सियालकोट फैसल शहजाद का कहना है कि ऐसे घिनौने जुर्म में मुलविस मुल्जमान किसी राहत के मुस्तहिक नहीं है। मुल्जमान को कानून के मुताबिक इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी और मुतासरा बच्ची को हर सूरत में इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सियालकोट पुलिस पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है और इस सिलसिला में तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज सियालकोट। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक तालीमी बोर्ड बहावलपुर के ज़रिए तमाम पहला सालाना इम्तिहान मैट्रिक इंटरमीडिएट 2025 के पोजीशन होल्डर्स तलबा और तलबात के एजाज़ में तकसीम लैपटॉप की पुरवकार तकरीब तालीमी बोर्ड बहावलपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को जदीद लैपटॉप दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर नैयर मुस्तफ़ा थे। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड जनाब ज़हूर अहमद चौहान और बोर्ड के दीगर अफसरान, उसातिज़ा, वालदेन और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी एडिशनल कमिश्नर नैयर मुस्तफ़ा ने अपने खिताब में कहा, पोजीशन होल्डर तलबा तालबात कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के फ़रोग़ और बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई के लिए कोशां हैं। लैपटॉप स्कीम इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। उन्होंने पोजीशन होल्डर तलबा तालबात को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कामयाबियाँ मेहनत, लगन और वालदेन उस्ताज़ा की रहनुमाई का नतीजा हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ज़हूर अहमद चौहान ने अपने खिताब में कहा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बहावलपुर हमेशा मेयारी इम्तहानात और शफाफ नताइज को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात को लैपटॉप देना इनकी तालीमी जदोजहद का एतराफ़ है और इससे नौजवानों में मज़ीद जोश व जज्बा पैदा होगा। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर में लैपटॉप तकसीम किए गए और उनकी शानदार कारकर्दगी पर
انہیں مبارکباد دی گئی۔ تمام پوزیشن ہولڈر طلبہ طالبات نے وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا لیپ ٹاپ ایوارڈ دینے پر دلی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب کی یہ کاوش تعلیم کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ حکومت کے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کی تجویز کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ فلسطین پر قابض اسرائیل کو تسلیم کرنے بارے کوئی حکمران خواب میں بھی نہ سوچے۔ حافظ وحید احمد اوان جمعیت علماء اسلام کے رہنما اور سابق امیدوار قومی اسمبلی حافظ وحید احمد اوان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کو پاکستان کی ریاستی پالیسی قرار دے جانے یکسر مسترد کرتے ہوئے سوال کیا ہے کہ حکمران بتائے یہ پالیسی کس فورم پر یا پارلیمنٹ میں طے کی گئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ پاکستان اور اس کی عوام صرف اور صرف ریاست فلسطین کے قیام کے حامی ہیں۔ فلسطین پر قابض اسرائیل کو تسلیم کرنے بارے کوئی حکمران نہ سوچے اور نہ ہی قوم ایسا اقدام کرنے کی اجازت دے گی۔ حافظ وحید احمد اوان نے نوجوانوں پر زور دیا کہ فرسودہ نظام کو بدلنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دیں۔ پاکستان سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ نوجوان فرسودہ نظام اور وسائل پر قابض مٹھی بھر حکمران اشرافیہ کے خلاف پرامن مزاحمت کریں۔ تھانہ پیر آباد پولیس پارٹی کے 24 گھنٹے کے دوران اقدام قتل کے مقدمات میں ملوث خاتون ملزمہ سمیت منشیات فروش گٹکا ماوا کے جرائم میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ پیر آباد میں، جہاں ایس ایچ او تھانہ پیر آباد انیس الرحمان سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اور نیوز کے ناظرین کو اس حوالے سے۔ اس وقت ہم موجود ہے تھانہ پیر آباد میں، جہاں پر ایس ایچ او تھانہ پیر آباد انیس الرحمان کی سپرویژن میں 2 مختلف کارروائیاں کی گئی۔ ایک منشیات فروش کو اریسٹ کیا گیا اور دوسرا مرڈر کی ملزم میں مفرور ملزمہ کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا سر، ایک بڑی کارروائی عرصہ دراز کے بعد اس ملزمہ کو گرفتار کیا گیا، اس ملزمہ کی گرفتاری کس طریقے سے عمل میں ہے؟ جی ہاں، یہ مرڈر کیس ان کے رشتہ داروں کا تھا، اس میں اس کا شوہر اور یہ انوالو تھے۔ اس کا شوہر تو بھاگ گیا تھا سوار، تو ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ واپس آ گئی۔ اس انفارمیشن پہ لیڈیز پولیس لے کے ہم ان کے گھر میں ریڈ کیا، ہم نے وہاں سے یہ مل گئی ملزمہ شازیہ۔ اچھا سر، ظاہر بات ہے ایک خاتون وہ بھی قتل کے مقدمے میں مفرور اور سندھ پولیس کے بالا افسران کی IR لسٹ میں بھی نامینیٹ تھی۔ ایک بڑا مشکل ٹاسک تھا یہ آپ کے لیے، اور ملزمہ گرفتار ہو چکی ہے۔ اس قتل میں کتنے لوگ ملوث ہیں؟ جی، اس قتل میں 3 لوگ ملوث تھے، ایک اس کا شوہر تھا، ایک ان کا رشتہ دار ہے، ایک یہ ملزمہ تھی۔ تو اس کو یہ بہت عرصہ دراز سے یہ اپنا ایک لاش تھی، بھاگی ہوئی تھی، تو یہ PO تھی، اشتہاری تھی۔ تو جیسے ہمیں پتہ چلا یہ آگے انفارمیشن ملی تو لیڈیز پولیس کی مدد سے ان کے گھر میں ریڈ کیا ہم نے، وہاں سے یہ پکڑی گئی۔ اچھا سر، جیسے کہ یہ خاتون تو گرفتار ہو چکی ہے، کیا اس کا شوہر بھی اریسٹ ہو چکا ہے یا اس کے لیے ابھی پولیس گرفتاری کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہے تاکہ جلد دوسرے ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ جی انشاءاللہ، یہ بہت پرانا کیس ہے، انشاءاللہ ہم اس کے شوہر کے بھی پیچھے ہیں، جیسے کوئی انفارمیشن آئے گی ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ اچھا سر، ملزمہ نے کیا انکشافات کیے؟ قتل کی وجہ کیا بنی؟ جی، ان کی رشتہ داری میں آپس میں رشتہ داری کے تنازعات تھے، تو اس وجہ سے اس کو، ان کا ہی رشتہ دار تھا، اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اچھا سر، دیکھنے میں نظر آ رہا ہے گناس کے نام پر بھی آپ نے بڑی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ ابھی منشیات فروش کو بھی اریسٹ کیا گیا، مزید کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ پیر آباد میں جو منشیات فروشی کا گنونا دھندا ہے 0 پر آئے گا اور نوجوانوں کی بڑی نسل کو نشے جیسی لعنت سے بچایا جا سکے؟ جی ہاں بالکل، میں نے آپ سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے کارروائیاں کی ہیں۔ ابھی یہ ہماری پرانی IR لسٹ میں B کیٹیگری میں تھا بنگالی، یہ پٹھان، اس کو ہم نے ابھی پکڑا ہے، رات ہم نے اس کو بک کر دیا ہے، اور ایک دوسرا گٹا ماوا فروش IR لسٹ میں ظفر افغان، اس کو بھی پکڑا ہے ہم نے، کل پکڑا ہے ان دونوں کو، انشاءاللہ وہ صبح جیل چلے جائیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے SHO تھانہ پیر آباد انیس الرحمان، جو نیوز کے پلیٹ فارم سے گفتگو کر رہے تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عامر، نیوز کراچی۔ SP ضلع کے ماڑی کیپٹن ٹائر فیضان علی کے احکامات پر عمل درآمد۔ تھانہ مدینہ کالونی پولیس کا دوران اسنیپ چیکنگ اسٹریٹ کرمنل سے پولیس مقابلہ، پولیس کی جوابی فائرنگ سے زخمی اسٹریٹ کرمنلز اسلحہ سمیت گرفتار۔ کراچی سے ہمارے اینکر پرسن محمد عامر موجود ہیں تھانہ مدینہ کالونی میں، جہاں SHO تھانہ مدینہ کالونی سے ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ جی محمد عامر، اپڈیٹ کیجیے گا اور اس کے ناظرین کو۔ اس وقت ہم موجود ہے تھانہ مدینہ کالونی میں، اور SHO تھانہ مدینہ کالونی
इफ्तिखार तनवली साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी सुपरविजन में गुज़िश्ता रात एक पुलिस मुकाबला देखने में नजर आया। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जख्मी हालत में मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट्स रही इन मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से आपकी दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? जिस तरीके से पुलिस को देखते ही इन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, दौरान डकैती मज़ामत में किसी शहरी को जख्मी या जहां भाग भी किया इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ्तिखार खान तनौली है। रिसेंटली मेरी पोस्टिंग एज SHO मदीना कॉलोनी में हुई। मैं रूटीन वाइज असल में कच्चा का इलाका है, मोटरसाइकिल पे ज़्यादा मैं गश्त करना पसंद करता हूँ। मोबाइल हमारे बैकअप पे होती है और हम रूटीन वाइज गश्त कर रहे थे। एक कंप्लेंट यहाँ पे था, मैं बैंक से निकल रहा था, मुझसे 50,000 रुपये लोग छीन के आए और यहाँ मैंने उनका ताक़ुब किया। मैंने किस तरफ है, जब उनकी तरफ जैसे ही हम लोग उनकी तरफ गए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जो पुलिस है हमने रिटेलिएट किया, रिटेलिएट में वो ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी होने के बाद हमने उनसे गाड़ी बरामद की, जो साइड में एक ही गाड़ी स्नैच हुई थी। मज़ीद उनका हमने गलत बयानी से काम कर रहे थे, बायोमेट्रिक तरीके से उनकी हमने शनाख्त की। तो इब्राहिम हैदरी में 302 में मर्डर में वो मतलूब था और रिसेंटली 23A1 में वो जमानत होके आया है नाजमाबाद थाने से। और ये ATM के पास लोगों को पीछा करके उनसे कैश छीनते हैं, गरीब लोगों का, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। अच्छा सर, जिस तरीके से आपने बताया मुलजमान के मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से, तो मुलजमान आदि स्टेट क्रिमिनल्स लगते हैं, तो मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? कोई सईद नाम का एक बंदा है जो यहाँ बल्दिया में इनसे राब्ते में होता है, वो उनको पिस्टल भी फराहम करता है। ये लोग वहाँ से आते हैं, पिस्टल लेते हैं। और इनका एक बंदा बैंक में होता है, सईद बहुत वेल सूटेड पुटेड बंदा है। वो लगता नहीं है कि स्ट्रीट क्रिमिनल है, वो सिर्फ काम करवाता है इनसे, हिस्सा वो पूरा लेता है इनसे। उनको बाइक भी फराहम करता है, नहीं बिल्कुल ब्रांड बाइक होती है, मगर वो बाइक चोरी की नहीं होती, ज़्यादातर स्नैचिंग की नहीं होती, क्योंकि रूटीन वाइज हमारे SSP और DIG साहब के हुक्म से हम लोग स्नैप चेकिंग करते हैं, वो पकड़े ना जाएं और उनके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो उनको सहूलतकार होता है, उनको सहूलतकार यहाँ से बुलाता है उनको। इंशाल्लाह हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, एक आध दिन में सही भी गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान के जो दूसरे साथी फरार होने वाले हैं, उनके लिए अभी तक क्या इकदाम किए गए ताकि जल्द मुलजमान जेल की सलाखों के पीछे नजर आए? और हमारा टेक्निकल बेस है, उनका फ़ोन हमारे पास है, फ़ोन से उनके राब्ते से हमने टेक्निकल बेस से उनका CDR मंगाया है, उनका वैरसेस मंगाया है, सीनियर उनका तस्वीरें आ गई हैं हमारे पास, उनका कन्वर्ट रिकॉर्ड आ गया है। उनके जो सहूलतकार और उनके जो दूसरे साथी थे उनके बारे में हम पता कर रहे हैं, वो जेल में या बाहर है, इस उनकी सहूलत से वो पकड़े जाएंगे। अच्छा सर, SSP किमारी कैप्टन फैजान के अहकामात पर रोजाना की बुनियाद पर स्नैप चेकिंग का अमल देखने में नजर आता है और उसके नताइज भी मुलजमान की गिरफ्तारी की सूरत में नजर आ रहे होते हैं, मगर आपने जैसा कि अभी चार्ज संभाला है, तो आप अपनी सुपरविजन में अलगराज क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं? असल में हमारे जो बिग बॉस हैं कैप्टन फैजान साहब बहुत टेक्निकल आदमी हैं, वो बहुत इस चीज़ को समझते हैं। जो वो मुख्तलिफ टाइमिंग चेंज करते रहते हैं हमारे स्नैप चेकिंग की। ये जो स्नैचिंग करते हैं वो हमसे एक हाथ आगे होते हैं। उन्हें पता है पुलिस का नाका आज 7 नंबर का भुसान पे लगा है, तो उनको रूट पता चल जाता है। इस तरह हमारे SSP साहब रूट चेंज करते हैं, टाइमिंग चेंज करते हैं। उनकी हिकमत अमली से हम लोगों को पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना मदीना कॉलोनी इफ्तिखार खान तनवली साहब, जो कि उन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नसीर मलिक की तफसीलात के मुताबिक मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल सईदी के ज़ेर क़यादत मरकजी जामिया मस्जिद नूरानी रेल बाजार नारंग में 33वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारखाना वाली महफिल का खूबसूरत इनेकाद किया गया। मुकामी मुल्की नामवर नात ख़्वान ने हदिया नात पेश किया। मारूफ मजहबी स्कॉलर सोहना माही और सफ्तर रजा का खुसूसी खिताब। बड़ी तादाद में अहबाब की शिरकत। तफसीलात के मुताबिक मरकजी जामिया मस्जिद नूरानी रेल बाजार नारंग में खतीब जामिया मस्जिद मुफ्ती मोहम्मद शहबाज रसूल सईदी के ज़ेर एहतमाम 33वें सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद की गई। तिलावत कुरान करीम कारी मुजाहिद हुसैन कादरी, जबकि नकाबत के फ़राइज़ जाहिद महमूद सदीकी ने अदा किए और हदिया नात मारूफ नात ख़्वान शेरास मदनी, ताहिर अली हाकिम, वाजिद अली मदनी, सदाकत अली सियालवी और सैयद शमसुद्दीन ने पेश किया। जबकि मजहबी स्कॉलर्स इलामा सोहना माही, इलामा सफ्तर रजा और मुफ्ती शहबाज रसूल सईदी ने अपने खिताब में अहले बैत और सहाबा किराम के किरदार पर रोशनी डालते हुए तमाम मुसलमानों को आपस में तफरकात को ख़त्म करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दीन इस्लाम पर चलने को अपना शिआर
बनाकर जोर दिया है। इस मौके पर अंजुमन शहरियार थाना नारंग, फलाही तंजीम अंजुमन शहरियार थाना नारंग, मुस्तफ़ाई तहरीक, प्रेस क्लब नारंग मंडी समेत हर मुकाबला फ़िक्र से बड़ी तादाद में दोस्तों ने शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी के फ़राइज़ मुस्तफ़ाई तहरीक नारंग ने अदा किए। अब खबर शामिल करते हैं बलूचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी कॉल पर जमीयत उलमा इस्लाम सिबी के ज़रिए एहतमाम चाके रोड मदरसा मुफ्ताल उलूम से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में कारकुनान, उलमा कराम, तलबा, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली की क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम सिबी के ज़िले अमीर मौलाना मोहम्मद अदरीस रिंद ने की। रैली में जनरल कौंसलर मीर हबीबुर्रहमान रिंद, जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद याहिया, मौलाना मोहम्मद अवैस, मौलाना खलील, मलिक सुल्तान मुसाखिल ने शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती और इसराइली जहरियत के खिलाफ नारे दर्ज थे। रैली के दौरान फ़िज़ा इसराइल मुर्दाबाद और फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। रैली में शरीक शुरका से जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िम्मेदारान, जनरल कौंसलर म्यूनसिपल कमेटी मीर हबीबुर्रहमान रिंद दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म है। उन्होंने कहा है कि साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी सामान ले जा रहे थे। ये इक़दाम इसराइली मुजालिम और बर्बरियत की बदतरीन मिसाल है। मुकर्रीन ने इनकी फौरी रिहाई और इमदादी काफ़िलों को फ़लस्तीन पहुँचाने के लिए आलमी बरादरी से हंगामी इक़दामात मुतालबा करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम अपनी जानों का नजराना पेश करके आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम हर फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम की हमायत और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने का अमल जारी रखेगी। रैली के आखिर में तमाम शुरका ने हाथ बुलंद करके फ़लस्तीनी अवाम की कामयाबी, आज़ादी और मज़लूम फ़लस्तीनी शोधा की दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। दौरान रैली सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अब रुक करते हैं शहर कायद थाना मोमिनाबाद का, जहां पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स असला समेत गिरफ्तार। मुलज़मान ने शहर कायद में मुतअद्दिद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के इंकशाफात किए। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना मोमिनाबाद में, जहाँ SHO थाना मोमिनाबाद मेराज अनवर से मुलज़मान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। वक्त हम मौजूद है थाना मोमनाबाद में और हमारे साथ मौजूद है SHO थाना मोमनाबाद मेराज अनवर साहब, जिनकी सुपरविजन में गुज़िश्ता रात पुलिस मुकाबला किया गया। 3 मुलजमान को अरेस्ट किया गया। मुलजमान में 2 मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। मौके से पिस्टल भी रिकवर किए गए मुलजमान से। अच्छा सर, जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग की, गिरफ्तारी के बाद दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए कि इन्होंने दौरान डकैती मुजामत पर किसी शहरी को जख्मी या जहाँ बाग भी किए? आमिर भाई, जो 3 मुलजमान रात को जो हमारा अपना इनकाउंटर हुआ, इसमें 3 मुलजमान हमने गिरफ्तार किए। इसमें लोग एक अलीदाद है, एक कामिल है और एक का नाम है शाहजेब। ये तीनों जो लियारी गैंग वार के जोड़े कमांडर आशिक भोलू, इसके एक करीबी साथी हैं। और ये फ़कीर कॉलोनी, दया कॉलोनी, ईरानी कैंप, इस इलाके के अंदर हरियाणा कॉलोनी वाली साइड पे ये एक अपना खौफ की उद्देश्य की इलामत बने हुए थे। इन लोगों से बदले लेना, डकैतियाँ करना, अगवा करना, इस तरह की बदमाशी लगी थी। और ये अलीदाद हमने अभी तकरीबन 4 महीने पहले गिरफ्तार किया था। अभी 1 हफ्ता पहले वापसी अपना जेल से बेल पे अपना वापसी आया, रिलीज़ हो गए हैं। और रात ही इन लोगों ने फिर अपने इलाके में काम शुरू कर दिया। जब रात में उनको अपना हमारे मोबाइल को रोकने की कोशिश की, इन्होंने पुलिस मोबाइल को देखती है, पुलिस मोबाइल में फायर खोल लिया। तो अपना उसके बाद जवाबी मुकाबले के अंदर जवाबी फायरिंग की जब क्रॉस फायरिंग हुई, उसके अंदर ही फिर 2 मुलजमान कामिल और अलीदाद जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। और जो अपना शाहजेब जो था वो आगे बैठा था मोटरसाइकिल पे, वो भी अपना तीसरा बंदा को भी गिरफ्तार हो, 3 बंदे गिरफ्तार हो टोटल इसके अंदर। अच्छा सर, गिरफ्तार मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनका ग्रोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? सर, इनका जो ग्रोह है तकरीबन 4 बंदों पर अपना ग्रोह है। बाकी इनके पास जो लियारी बारी से और ये इस साइड से रईस बोर्ड वाली साइड से और माज बोर्ड से लड़के काफ़ी हैं और यहाँ वाली साइड से निकल जाते हैं। और ये भी अपना रिसेंटली अभी अलीदाद वाली जेल से रिलीज़ हो गया है। अलीदाद और शाहजेब भी जेल से हैं, तकरीबन 1 हफ्ता का बना है। आते ही इन्होंने दोबारा इलाके में डकैतियाँ वगैरह शुरू कर ली। इनसे तकरीबन 6 और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए और 2 पिस्टल जिससे अपना 9mm से बरामद हुए। अच्छा सर, दौरान इंट्रोगेशन मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए? इनको कौन लोग हैं जो असला प्रोवाइड कर रहे हो? शहर कायद में ये कितनी स्ट्रीट टाइम की वारदातें कर चुके हैं? सर, जैसे मैंने बताया ना भाई, जो लोग थे अपना इलाके में खौफ की अलामत थे। इसके अलावा मोमिनाबाद के अलावा फ़कीर कॉलोनी के अलावा ये लियारी के अंदर भी अपना इनका जो है गैंग ऑपरेट करता था। उसके अलावा जो शहीदाबाद का इलाका मौजूद वहाँ भी ऑपरेट करता था। इनको असल में सबसे बड़ा एक्सेस ये है, इनको आसानी जो है ये हवा वाली साइड में, बलूचिस्तान वाली साइड में निकल जाते थे। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद आपने जब मुलजमान का डेटा रिकवर किया तो सिंध पुलिस को कितने मुकदमात में ये मुलजमान मतलूब थे? सर, अलीदाद तकरीबन 21 से 22 मुकदमात में है और इस तरह शाहजेब के भी 18-16 मुकदमात हैं।
और कामिल की भी काम, कामिल तो उसके अलावा मुंशियात फरोशी का भी काम करता है। तीनों का तकरीबन 16-18 हर बंदे को बनाया खैर है। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद मुलजमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव की गई है, तो क्या किसी मदई मुकदमा ने इनको शिनाख्त करते हुए आपसे राब्ते किए? हाँ जी सर, काफ़ी लोग आ रहे हैं और उनको हम अपना कल अपना लिस्टेड पेश करेंगे, फिर इस पर इनकी अपना एफ वगैरह दराज करेंगे। अच्छा सर, किसी भी इलाके में जराइम रोकने के हवाले से शहरियों की बड़ी एफर्ट्स रहती है, आप ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से शहरियों को क्या पैगाम देंगे कि ताकि वो पुलिस के साथ ताउन करें और जराइम रोकने में अपना अहम किरदार अदा करें? सर देखें, आवाम और पुलिस मतलब जब तक इनका आपस में अपना कोऑर्डिनेशन जो काम बनता नहीं है, और देखें जब तक आवाम पुलिस की हेल्प नहीं करेगी और अपना कोर्टों में नहीं आएगी, इनको शिनाख्त नहीं करेगी, उसके बगैर काम बनता नहीं। अगर हम लोग अपना पुलिस वालों को पकड़ दे नहीं है, आप वो जो उनके मतलब जो कोर्ट के मामला हैं पुलिस वगैरह हो जाएंगे, वहाँ मासूम बन जाते हैं, तो आवाम का काम है कि आवाम आ गया है और जिनसे वारदात होती है अगर ना अपने मुकदमात का इंदराज करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ थाना मोहम्मदाबाद मिराज अनवर, जो के मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ मुजम्मिल मुश्ताक की जानिब से पीर सैयद हसन के एहसास में शाइए का तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से पीर सैयद हसन, मेज़बान मियाँ मुजम्मिल मुश्ताक, डॉक्टर फजल बर्जिस, मुनव्वर अल शिमरी, मियाँ आमिर मुश्ताक, मियाँ असलम यासीन और दीगर का कहना था कि वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वलवला अंगेज़ क़यादत में सऊदी अरब ने तरक्की की संगे मील अबूर किए हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात दीन इस्लाम, तारीख़, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर कायम है और रहेंगे। पाकिस्तान सऊदीया की लाजवाब दोस्ती दिफाई मुआहदे से मज़ीद मजबूत होगी। सऊदीया पाकिस्तान का दरीना दोस्त है और सीरतुल नबी हमें इत्तेहाद, एहसार और खिदमत खल्क़ का दर्स देती है और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को चाहिए कि इन सुनहरी असूलों को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान की फ़लस्तीनी पॉलिसी में वासिया है। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात की रोशनी में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई वाज़िया है। हाजी मोहम्मद नदीम चौधरी पेट्रोलियम मसनूआत बिलखुसूस डीजल की कीमत में इजाफा छोटे काश्तकारों के लिए इंतहाई महलिक साबित होगा। बिलखुसूस मुतासरीन सैलाब काश्तकारों को आइंदा फसल की काश्त, ज़मीन को हमवार करने समेत दीगर मामलात में इंतहाई तकलीफ दे फैसला होगा। इन ख्यालात का इजहार हुरनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम ने कहा। शदीद सैलाब ने पाकिस्तानी मईशत को बहुत कमज़ोर किया है। मौजूदा सैलाब के मनफी असरात आइंदा चंद सालों तक जारी रहेंगे। हाजी मोहम्मद नदीम चौधरी ने कहा है कि फ़लस्तीनी कौम ने अपनी बका और आज़ादी के लिए लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की हैं जो कभी रायगा नहीं जा सकती। फ़लस्तीनी कौम ने जिस तरह भूख और अफलास के साथ मुज़ाहमती तहरीक जारी रखी, ये दिलेर, बहादुर, जिंदा और अजीम कौम की निशानी है। पाकिस्तान समेत तमाम इस्लामी मालिक को फ़लस्तीन और दो टोक पॉलिसी अपनाना होगी। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। थाना डहरकी के करीब बट्टा मार्केट में डकैती की वारदात। दो मोटरसाइकिल सवार मसल्ला मुलजमान लाखों रुपए लूट कर फरार होने में कामयाब। मुलजमान ने सिगरेट की एजेंसी से जमरू मिल्क की एजेंसी से 2 से 3 लाख रुपए लूटे हैं। ज़राए डहरकी पुलिस इत्तला के बावजूद बर वक्त मौके पर ना पहुँच सकी। मुतासरा ताजर की SSP घोटकी से इंसाफ की अपील। लूटी हुई रकम वापस दिलवा के इंसाफ फराहम किया जाए। रहीमिया खान थाना ज़ाहिर पीर की दूत में पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, साथी फरार। रहीमिया खान डाकू चंद रोज कबल इंसानी जानें बचाने वाली करोड़ों रुपए मालिक की अद्वियात से लदा ट्रक डकैती करके रुपोश हुए थे। पुलिस ने डकैती की इतला पाकर इलाके की मुसलसल नाकाबंदी कर रखी थी। आज रात डाकू अद्वियात से भरा ट्रक नेशनल हाईवे लिंक रोड पर ले जा रहे थे कि पुलिस से आमना सामना हो गया। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के इतला पर सर्कल भर की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के दौरान 3 नामालूम डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने डकैती शुदा ट्रक डाकुओं की ज़ेरे इस्तेमाल कार और नाजायज कब्जा में ले लिया। पुलिस डाकुओं के फरार साथियों की तलाश जारी रखे हुए हैं। DPO इरफान अली समूह की पुलिस टीम को शाबाश, फरार मुलजमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने की हिदायत। डेरा गाजी खान पूरे मुल्क की तरह डेरा गाजी खान में भी फ़लस्तीन भाइयों से इजहार यकजहती और ट्रंप के बेसनकाती अमन फार्मूले के खिलाफ कायद जमीयत मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान के हुक्म पर यौम तूफ़ान मनाने के लिए रैलियाँ निकाली गई। रैली से जमीयत उलमा इस्लाम डेरा गाजी खान के अहदेदारान ने खिताब किया। वहाँ पर मौजूद हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही ने लाइव कवरेज की। जमीयत उलमा इस्लाम डेरा गाजी खान के ज़िलई अमीर अब्दुल अजीज़ बलोच खिताब कर रहे हैं। आइए इनका खिताब सुनते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल झंडे लहराए, जमीयत वाले लहराए, फ़लस्तीन का झंडा लहराए। गज़ा से रिश्ता क्या, बुलंद आवाज़ से गज़ा से रिश्ता क्या।
लगा के कह के तोबू से फिर जाना हमें आता है। अरे बुत परस्तों तुम जानते हो क्या, बुतों को तोड़ना ठाना गिराना हमको आता है। ये मुसलमान जो खड़े हैं अजीम हैं, आपकी अजमत को सलाम। इस मुश्किल दौर के अंदर जब दुनिया अपने दुनियावी काम में बैठी है, मैं डेरा गाजी खान से भी कुछ आवाम से कहना चाहता हूँ, खुदारा ये अपने कारोबारों को ना देखो, अल्लाह और अल्लाह के निज़ाम को देखो। अल्लाह का निज़ाम आएगा, हमारे कारोबार में भी बरकत होगी, जिंदगी में भी बरकत होगी, औलाद में भी बरकत होगी, मोहब्बत भी होगा, प्यार भी होगा, रवादारी भी होगी। अब आप गज़ा के लिए आपको इल्म होना चाहिए कि आप निकाले ये कौन सा अमन का फार्मूला है। इन्होंने हमारे गज़ा और फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, ख़वातीन को, बूढ़ों को ऐसे रगड़ा जैसे खून निकाला जैसे किसी चक्की में से निकलता है। ऐ अमेरिका, इस्राइल, तुम लाज़िम मलज़ूम हो, हमारा मुसलमान तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। ये अपनी आप से बदला लेंगे और लेके रहेंगे और अपने हुक्मरान। बावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका दूरकोट बस्ती संजरानी को दरिया सतलुज ने तबाह कर दिया। सैलाबी पानी से फसलें और मकानात गिर कर तबाह हो गए। सैलाब मुतासरीन बयारों मददगार खुले आसमान तले सड़क किनारे वन पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर, खाने पीने को कुछ नहीं। सैलाब मुतासरीन में बीमारियां फैल रही हैं। सैलाब मुतासरीन की चीखों पुकार हुकाम बाला और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज से अपील, खुदारा हमारी मदद की जाए, हम आपकी इमदाद के मुंतज़िर हैं। सैलाब ने हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल से। जी अजमल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका धूड़कोट बस्ती संजरानी बन पर मौजूद हूँ। हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं जो इस टाइम बेयारों मददगार इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनसे जानना चाहेंगे उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी आप क्या कहना चाहते हैं? जी जिसे मैं जा संजरानी बोलना पिया मौजे धूड़कोट तो 28 डी थे गन साकू जना दा फला टाइप बांधते गुजारे हुए, कोई शय नहीं साकू मिली गई, कोई मदद नहीं की गई। मच्छर ओ हैं रात दे साकू इतना जलील करें साकू सकून नहीं आंदा। जेरे लोग वड्डे लोग गुजरेंदे पे ऐशे दे विच पक्के दे बेटे ने 1 घंटा दा सनर गुजार देखें भाई किवें गुजरेंदे वे। साडी अपील है मरियम नवाज ते सारी सुनी वने, साडे घर तबाह थी गन, कोई शय नहीं बची जरा सा पिछो ते जाते बसेरा करूँ, कोई मदद नहीं साडी कीती। एक ही टेंट मिले बस, भला कशा नहीं सकूँ, ना कोई राशन मिले ना कोई शय मिले। लकड़ी असां कने कानी जरे असां रोटी पका ते असां खाऊं, लकड़ी कानी असां कने। इतना बच्चे सारे बीमार थी गए, मच्छरें कनो बुखार इन्होंने को, कोई इलाज वाला बंदा नहीं है जरा इलाज न करे सारे बच्चों का, कोई नहीं सारी सुनता पिया। ही वक्त साड़ी अपील है सारी सुनी वने, बिल्कुल सारे नाल तावन किया वने। मरियम नवाज थी गई, IC साहब थी गए, जो अपने हुकूमत वाले हैं सुने सारी मदद की वने। जी जैसा कि आपने सुना है कि सैलाब मुतासरीन का कहना है कि सिर्फ हमें कैंप मिला है। जब से ये सैलाब आया है, सैलाब का रेला भी तो चला गया है। हमारी आला हुकाम को अपील है, हमारे पास ना तो घर है ना को खाने पीने की कोई चीज़ है। हमारी फसलें, घर, मकान सब चीज़ गिर चुके हैं। हम इमदाद के मुंतज़िर हैं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। हमारी आला हुकाम को अपील है कि हमारी इमदाद की जाए। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ महकमों के सर्वे टीमों की सरगर्मियाँ जारी। नारोवाल सैलाब से मुतासर इलाकों में नुकसान के तखमीने के लिए सर्वे का अमल तेज़ी से जारी है। ज़री रेवेन्यू, अर्बन यूनिट और महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें ज़मीनों में जाकर तफसीली सर्वे कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक सैलाब से मुतासरा फसलों और ज़मीनों की बहाली के लिए इदाद व शुमार इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि मुतासरा ज़मींदारों को हुकूमत की जानिब से मुमकिन इमदाद फराहम की जा सके। इस मौके पर पाक आर्मी की टीमें भी ज़मींदारों के साथ मैदानी सतह पर मौजूद हैं और मुतल्लिका महकमों की मावनत कर रही हैं। ज़मींदारों ने पाक आर्मी इंतज़ामिया के ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया है और मुतालबा किया है कि नुकसान के मुताबिक जल्द अज जल्द मुआवजा दिया जाए। यहाँ से एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया है, जहाँ तालीम के इदारे को रोशनी देने वाला बिजली मीटर ही करप्शन की तारीकी में डूब गया। गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल चक नंबर 51 फतह का सरकारी बिजली मीटर घरों और दुकानों को सप्लाई देने लगा। ज़राए के मुताबिक स्कूल के हेड मास्टर फारूक रैशी ने मुबैना तौर पर 3 घरों और 2 कमर्शियल दुकानों को गैर कानूनी कनेक्शन फराहम किए। घरेलू कनेक्शन के एवज माहाना 5000 जबकि कमर्शियल दुकानों से 3000 रुपये रिश्वत वसूल की जा रही है। अवामी समाजी हल्के इस
انکشاف پر پھٹ پڑے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو استاد بچوں کو علم کی روشنی دینے آیا تھا وہ خود کرپشن کی تاریکی پھیلانے لگا ہے۔ عوام نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس بجلی چور مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ سرکاری اداروں کی ساکھ کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰਾ ਕੋਜਾ ਚੱਕ ਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਫਰੂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ 51 ਫਤਿਹ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ। 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਮੀਟਰ ਚੋਂ ਗਾਂ ਤਾਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਫਰੂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਦਰਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ। ਜ਼ਾਹਦ ਦਰਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਲਾ ਪੜਿਆਰਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਘਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਇਹ 8-10 साल तो ये काम चल रहा है। उकाड़ा से जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा पैराफोर्स के ईदगाह रोड पर तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 8 दुकानें सील। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद उकाड़ा इंक्रोचमेंट टीमों ने ईदगाह रोड पर दुकानों की चेकिंग की। खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों की 8 दुकानें सील कर दी गई। तजावजात से पाक सड़कें और बाजार फराहम करने होंगे। पैराफोर्स की जानिब से मॉनिटरिंग का अमल तसलसल से जारी है। उकाड़ा तजावजात से ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ सड़कों पर हादसात होते हैं। तजावजात शहर की खूबसूरती को मुतासर करती है। पैराफोर्स दुकानदार अपनी मुकर्रर जगहों तक महदूद रहें। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद, डिस्ट्रिक्ट कमांडर पैरा का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अलीज़ा रेहान के हमरा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा। उन्होंने दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों और वसाइल का जायज़ा लिया। इस मौके पर सब डिवीज़न इन्फोर्समेंट ऑफिसर वसीम जावेद समेत इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन अफसरान भी मौजूद थे। SDO पैरा वसीम जावेद ने डिस्ट्रिक्ट कमांडर को दफ्तरी अमूर और वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कमांडर पैरा अहमद उस्मान जावेद ने पैरा फोर्स को रेगुलेटरी पर अमल दरामद करवाने के लिए जिम्मेदारी से इकदाम के अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट कमांडर पैरा अहमद उस्मान जावेद ने कहा है कि मुफादनामा और अवामी शिकायत के अजाला के लिए कानून की बालादस्ती की हिदायत दें। पैरा फोर्स कानून की बालादस्ती और इंतजामी इस्तेदाद में इजाफे के लिए अहमियत की हामिल है। तजावजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ नज़्म ज़ब्त और रियासती इदारों के साथ मिलकर अवामी खिदमत करें। उन्होंने कहा है कि पैरा फोर्स लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए मुतहरिक अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। तजावजात के खात्मा के लिए पैरा फोर्स की टीमें बगैर किसी दबाव के सख्त कार्रवाइयाँ करें। लाहौर से हमारे नुमाइंदे नदीम शाह की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार की हिदायत पर मौज़ा हरबंसपुरा में नाजायज़ काबज़ीन से सरकारी ज़मीन बागजार करवा ली गई। मौज़ा हरबंसपुरा के पटवारी मियाँ इरफान और गिरदावर नदीम गुजर ने असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार के हुक्म पर पैरा फोर्स के साथ मिलकर सरकारी ज़मीन पर काबिज़ नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाई की, जिस पर अहल इलाका ने खुशी का इजहार किया है। अहल इलाका का कहना था कि नाजायज़ काबज़ीन के खिलाफ कार्रवाई पंजाब हुकूमत का बेहतरीन इक़दाम है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप एसोसिएशन के वफ्द के नए तैनात होने वाले श्रीलंकन कौंसल जनरल से मुलाकात। 3 अक्टूबर 2025 कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान CAP और पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप एसोसिएशन के मुश्तरका वफ्द ने सदर PSLFA चेयरमैन CAP कोकब इकबाल की क़यादत में श्रीलंका के नए तैनात कौंसल जनरल कराची जनाब संजीवा बटीवेला अराची से मुलाकात की और उनकी तकर्री पर दिली खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान कौंसल जनरल ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा, सकाफ़ती तावन को बढ़ाया जाएगा और अवामी सतह पर ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान श्रीलंका फ्रेंडशिप एसोसिएशन और कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली और तावन के फ़रोग़ देने के हवाले से सराहा। वक्त में शेख खलीलुर रहमान सीनियर वाइस चेयरमैन CAP, कफ़ील अहमद खान चेयरमैन डिप्लोमेटिक अफेयर्स CAP, शरोज़ कोऑर्डिनेटर ब्राय बिजनेस डेवलपमेंट CAP समेत दीगर नुमाइंदगान शामिल थे। इस मौके पर वफ्द की जानब से कौंसल जनरल को फूल पेश किए गए, जबकि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के इस्तेहकाम के जश्न के तौर पर केक भी काटा गया। PSLFA और CAP की जानब से गुफ्तगू करते हुए कोकब इकबाल ने इस अज़म का इरादा किया कि दोनों बरादर ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, सकाफ़ती और समाजी रवाबत को मज़ीद मज़बूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी।